Hello dear SYPSC microbiology students. So in the last lecture we have seen about two pathways which are involved in the metabolism. So now here we are going to study the third pathway of metabolism, which is given in your syllabus, is called ED pathway. So now talking about the ED pathway, it is also called as Entner and Deirdorf pathway. ED stands for Entner and Deirdorf. Now these two scientists are one who has discovered this pathway. So this pathway is given this ED name or the Entner-Deirdorf pathway name by their invention or by their discovery. So talking about this pathway, now we have learned in the last PPTs, like last two lectures, we have seen that there are two pathways mainly involved, like for the production of the ATP and the NADPH. So talking about the ATP production or the formation, generally bacteria or any type of eukaryotic cells or the prokaryotic cells, sorry, not eukaryotic cell, they generally use the we can say they generally use the glycolysis as the pathway to generate the energy molecules, and even bacteria in that sense. But some bacteria or some types of bacteria, generally gram positive bacteria, they are the one who use this kind of pathway, which is ED pathway. Now this pathway has like characteristics of both the pathways we have studied. We have studied the glycolysis, we have studied the second pathway which was HMP pathway, HMP शंट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे. इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस पाथवे में है. मतलब इस पाथवे की वे से हम पायरुवेट भी जनरेट कर सकते, एटीपी भी जनरेट कर सकते, एज वेल एज एचएमपी पाथवे के जैसे यहाँ पे एनएडीपीएच का भी सिंथेसिस होता है. सो इट इज़ लाइक वी कैन से इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल पाथवे जो एटीपी भी जनरेट करेगा, जो NADPH भी जनरेट करेगा, एंड इट विल आल्सो जनरेट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ पायरुवेट, जो ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था. सो ये जो है मल्टी फंक्शनल पाथवे है जो जनरली सब बैक्टीरिया नहीं बट कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है ये पाथवे फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ दे जनरेट द ATP, पायरुवेट और एनी like NADPH. So talking about the Entner-Deirdorf pathway, although the glycolytic pathway like glycolysis is very important or very common route for the conversion of the hexose, that is glucose to pyruvate. ये बहुत कॉमन पाथवे ग्लाइकोलिसिस. जनरली मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी में सबसे पहले पाथवे जो स्टडी करने के लिए दिया जाता है, इट इज़ ऑलवेज द ग्लाइकोलिसिस. इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया हो या कोई भी सेल हो, इट जनरली फॉलोज दिस काइंड ऑफ पाथवे टू जनरेट पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल. बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, या यहाँ पे कहानी में थोड़ी चेंज है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हटके होते हैं. दे डोंट यूज़ आइदर ग्लाइकोलिसिस और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे. ये इन दोनों का इंटरमीडिएट पाथवे, मतलब ये दोनों का मिला के जो पाथवे बनता है ना, दैट इज़ ED पाथवे. तो ये वाला पाथवे जो है ये कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं for the conversion of glucose to pyruvate, for the generation of ATP, or for the NADPH formation, multifunctional pathway we can say. So ये जो pathway है, it has similar role like production of pyruvate or ATP. 6-phosphogluconate is a precursor of this pathway जो dehydrate होता है to form, that is OH is removed or we can say H2O is removed to form the 2-keto 3-deoxy-6-phosphogluconate. जिस नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ आएगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे. सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइक 6-phosphogluconate जो हमने HMP पाथवे में स्टडी किया था. 6-phosphogluconate इज प्रिकर्सर. तो ये जो प्रिकर्सर है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द 2-keto 3-deoxy-6-phosphogluconate. इसका शॉर्ट निक नेम हम कह सकते हैं इज़ KDPG, केटो डिऑक्सी फॉस्फोग्लूकोनेट. तो ये नाम आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके समझ आएगा, बार बार सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा. सो ये जो प्रोडक्ट है KDPG, इट इज़ इंटरमीडिएट टू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे. ये KPTG जो है KDPG जो है, इट इज़ लाइक फर्दर गोज इनटू द ग्लाइकोलिसिस पाथवे, और
मिडल में ही ग्लाइकोलिसिस का जो सेकंड फेज आता है ना, पे ऑफ फेज, जहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म होता है, ये वहाँ पे जाके एंट्री करता है और वहाँ से ग्लाइकोलिसिस कैरी आउट करता है, वहाँ पे फॉर्मेशन करता है पायरुवेट। ये आप जब देखोगे पाथवे तो अच्छे से समझ आएगा। सो ये जो KDPG है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये जो KDPG, it will converted into the two products of glycolysis which is pyruvate and the glyceraldehyde 3-phosphate, जो हमने glycolysis में स्टडी किए थे। then this glyceraldehyde phosphate 3-phosphate is converted into pyruvate in the bottom part of the glycolytic pathway। तो अब हमने जब ग्लाइकोलिसिस स्टडी किया था तब हमने देखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो आगे जाके कुछ लाइक चेंजेस करके, कुछ रिएक्शंस करके, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। मतलब फिर इस पाथवे में क्या हुआ, हमने देखा कि KDPG जो है वो भी पायरुवेट फॉर्म करता है, एंड अभी एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म किया है इसने, तो ये आगे जाके फिर से पायरुवेट फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेंगे, जो अगेन जैसे ग्लाइकोलिसिस में भी 2 बनते हैं, यहाँ पे भी 2 बनेंगे। तो यही सिमिलैरिटी है बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड द ED पाथवे कि यहाँ पे 2 बार पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और वहाँ पे एक ही बार में 2 बनते हैं, बट यहाँ पे 2 बार बनते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल डिफरेंट स्टेजेस पे, जो हम देखने वाले हैं एंड आपको और अच्छे से समझ आएगा। देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव द तो यहाँ पे जो है ED पाथवे में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा या डिग्रेड होगा। बिकॉज डिग्रेड हम कह रहे हैं बिकॉज 6 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द 3 कार्बन प्रोडक्ट, सो वी कॉल्ड इट एज डिग्रेड, ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू द पायरुवेट। देन इन दिस वे इट ऑल्सो इल्स 1 ATP। जो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था 2 ATP फॉर्म हुए थे, यहाँ पे एक ही ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होगा एंड ओनली 1 NADPH विल बी फॉर्म्ड। जो हमने EMP पाथवे देखा था वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉट EMP सॉरी HMP पाथवे जब देखा था तब हमने देखा था वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे जो है ओनली 1 ATP विल बी फॉर्म, ओनली 1 NADPH विल बी फॉर्म एंड 1 NADH विल बी फॉर्म पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो ये जो है ये तीनों चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जो हम पाथवे स्टडी करेंगे आपको समझ आएगा। देन मोस्ट बैक्टीरिया हैव द ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंड द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, बट हियर सम बैक्टीरिया लाइक यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम भी दिए गए हैं विच इज़ ए सब्सटीट्यूट फॉर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे और ग्लाइकोलिसिस। तो ये कौन से बैक्टीरिया कैरी आउट करते हैं ED पाथवे? दे आर सुडोमोनास, राइजोबियम, अज़ैटोबैक्टर, agrobacterium and few other gram negative genera and very few gram positive genera like Enterococcus faecalis, which is very rare exception. I was mistaken, I am sorry, I told you that gram positive में होता है, it is generally taking place in the gram negative bacteria not gram positive bacteria। तो gram positive bacteria में Enterococci जो है वही उसी में या उन्हीं में ये होता है, वो भी एक्सेप्शन, मतलब हर बारी नहीं होगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस बहुत सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे है और वो जनरली कैरी आउट करते हैं बैक्टीरिया। बट कुछ रेयर केसेस लाइक ग्राम निगेटिव में हमने कुछ बैक्टीरिया के नाम देखे, लाइक राइजोबियम हो, सुडोमोनास हो, अज़ैटोबैक्टर हो, एग्रोबैक्टीरियम हो, ये जैसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये सब जो है ये वाला ED पाथवे फॉलो करते हैं rather than ग्लाइकोलिसिस। एंड जो ग्राम पॉजिटिव है बहुत कम है एंड एक्सेप्शन इज़ लाइक एंटेरोकोकाई फेकालिस, जनरली वो पाथवे कैरी आउट करता है, वो भी बहुत कम बार। देन टॉकिंग अबाउट दिस पाथवे, हम अब डिटेल में देखेंगे ये पाथवे क्या इस पाथवे में होता है। सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज़ ग्लूकोज। नाउ हर जगह पे प्रिकर्सर विल बी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सो अगर आपको एंजाइम का नाम देखना है तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यूजिंग द एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन विल बी टेकिंग प्लेस इनटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब क्या यहाँ पे OH जो है वो रिमूव किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, वेट अ मिनट,
सो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, तो आपको पता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो हमने बात की थी NADPH का जो फॉर्म होता है वो यहीं पे होता है। NADH का फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट दिस स्टेज। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। एंड यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, कुछ कार्बन का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज होगा, कहीं पे ग्रुप का एडिशन किया जाएगा, कहीं पे रिमूवल किया जाएगा। ये जनरल जो है पाथवेज में होता है। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे OH ग्रुप है, दैट इज COH होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, C डबल बॉन्ड O, मतलब COOH का आपको पता है COOH इज इक्वल टू C डबल बॉन्ड O। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर्म होगा और जो OH ग्रुप है वो रिमूव होगा। दैट इज वाई ये जो एंजाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज इट रिमूव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वेट अ मिनट, आई नीड टू रफ दिस। सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट एंजाइम यूज्ड वाज glucose 6 phosphate dehydrogenase, which converts the glucose into the 6 phosphogluconate, and here only the one NADH molecule is formed. After that, second enzyme involved is यहाँ पे 6 phosphogluconate will be converted into the main product of this pathway, which is KDPG, जो हमने अब स्टार्टिंग में देखा था KDPG, ये यहाँ पे फॉर्म होता है इन द थर्ड स्टेज। तो ये KDPG जो है ये किससे फॉर्म हुआ, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और यहाँ पे क्या हुआ, एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। तो यहाँ पे भी सेम जो है चेंजेस होगी कि H2O रिमूव होगा और डबल बॉन्ड O फॉर्म होगा। सो टॉकिंग अबाउट द एंजाइम, यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ की जाती है डिहाइड्रेटेज विच इज़ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, नाम तो पहले प्रोडक्ट का ही होगा, प्रिकर्सर का ही होगा। तो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का क्या करेगी, डिहाइड्रेटेज, दैट इज, वेट अ मिनट आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे। सो हियर व्हाट हैपन इज दैट here 6 phosphogluconate will be converted into 2 keto 3 ऑक्सी फॉस्फोग्लूकोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, दैट इज़ यहाँ पे जो OH है आपको सेकंड कार्बन पे दिख रहा होगा। तो ये OH की जगह आपको क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है। मैंने आपको पहले भी बताया C डबल बॉन्ड OH इज इक्वल टू COOH। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे OH रिमूव होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द C डबल बॉन्ड O। सो ये जो डिहाइड्रोजिनेज हो या डिहाइड्रेटेज हो, दे आर द एंजाइम विच विल रिमूव द OH ग्रुप। OH रिमूव करके वहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करना या फिर COOH फॉर्म करना इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहीं पे आपको दिखेगा कि KDPH में बस 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से क्या चेंज है कि वहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड है एंड सेकंड कार्बन पे भी अभी यहाँ पे C डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सो यही स्मॉल चेंजेस जो है फॉर्म होते हैं इन द थर्ड स्टेज। नाउ इन द फोर्थ स्टेज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जो है थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या होगा, जो KDPH हमने देखा फॉर्म हुआ है वो जाके स्प्लिट होगा इनटू द 2 प्रोडक्ट्स। अभी वो कौन सी एंजाइम है, KDPH अल्डोलेज। KDPH अल्डोलेज हो या फिर हम उसको लॉन्ग फॉर्म में कह सकते हैं 2 keto 3 ऑक्सी फॉस्फोग्लूकोनेट अल्डोलेज। थोड़ा लंबा नाम है बिकॉज उस प्रिकर्सर का नाम ही बहुत लंबा है, KDPH हम उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ये जो KDPH है यूजिंग द अल्डोलेज एंजाइम, इट विल बी फॉर्म्ड इनटू द 2 प्रोडक्ट्स विच इज ग्लिसरल्डिहाइड एंड द पायरुवेट। जहाँ पे भी आपको लेज नाम आए ना, LASE, तो यहाँ पे आप क्या समझना कि कुछ तो भी ब्रेक डाउन होने वाला है, तो कुछ तो भी है जो ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, KDPH यूजिंग द अल्डोलेज एंजाइम, नाम देना प्रिकर्सर का एंड अल्डोलेज नाम देने का, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दी पायरुवेट। जहाँ पे भी अल्डोलेज नाम आया, यू कैन से लेज नाम आया मतलब ब्रेक डाउन हुआ, लाइसिस हुआ कुछ तो। सो टॉकिंग अबाउट द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड
दिस सेकंड वन पायरुवेट। तो मैंने आपको बोला ये इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस एंड द ईएमपी पाथवे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस जैसे ही यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, बट ये कहाँ पे हुआ, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, हमने देखा था वो पे ऑफ फेज के पे ऑफ फेज में लास्ट स्टेज पे हुआ था, बट यहाँ पे यहीं पे यानी कि फर्स्ट स्टेज पे ही पायरुवेट फॉर्म हो गया। केडीपीजी से पायरुवेट फॉर्मेशन हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पे बस एक ही मॉलिक्यूल का पायरुवेट फॉर्मेशन हुआ है, एक ही पायरुवेट है। आगे जाके ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये आगे जाके फिर क्या करेगा, पायरुवेट फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, ये क्या करेगा, सीधी एंट्री ग्लाइकोलिसिस में लेगा। ग्लाइकोलिसिस की जो सेकंड फेज है, जहाँ पे हमने देखा था पहले स्प्लिटिंग वगैरह होके जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म होता है। वेट अ मिनट, ग्लाइकोलिसिस में तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म होता है, उसके बाद फिर से जाके एंड में पायरुवेट फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी एक पायरुवेट बन चुका है केडीपीजी के मदद से। अब यहाँ पे फिर से ग्लाइकोलिसिस कैरी होगा, हाफ ग्लाइकोलिसिस, पूरी ग्लाइकोलिसिस नहीं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के आगे की जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की वो वहाँ पे कैरी आउट होगी। सो यहाँ पे देखो, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आपको दिखेगा 1 NADH मॉलिक्यूल इज अगेन फॉर्म्ड। तो जो हमने स्टार्टिंग में दिखा था NADH मॉलिक्यूल 2 फॉर्म होते हैं, वो यहाँ पे एक हुआ एंड वहाँ पे एक हुआ। देन सेकंड स्टेप है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्मेशन। 3 फॉस्फोग्लिसरेट अगेन यहाँ पे हमने सीखा था ग्लाइकोलिसिस में कैसे फॉस्फेट जो है वो एक रिमूव हुआ यहाँ से, वी कांट सी अ फॉस्फेट, इसकी जगह हमें O दिख रहा। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, थर्ड स्टेज यहाँ पे है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब फॉस्फेट की बस पोजीशन चेंज हुई। एंजाइम सेम है, जो भी हमने ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम यूज़ किए वही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप ग्लाइकोलिसिस समझ गए, तो ये भी आपको आधा पाथवे तो ऐसे ही समझ आ जाएगा कि आपको ग्लाइकोलिसिस पता है, मतलब आपको आधा ईडी पाथवे भी पता है क्या होगा। देन 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और पायरुवेट, यहाँ पे भी एक एटीपी जनरेशन हुआ। बस यही एटीपी जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है एक ही एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है, अनलाइक द ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे हमने 2 एटीपी मॉलिक्यूल देखे थे बनते हुए, बट यहाँ पे एक ही स्टेज पे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एटीपी का, विच इज़ हियर। आई विल शो इट यू, सॉरी। सो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है, जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो बस एक ही टाइम पे फॉर्म होता है, विच इज only one stage, at one stage it will be formed, like here we can say only here ATP molecule is formed, यहाँ पे ATP molecule formation नहीं होता। So then talking about the glycolysis, so the talking about the sorry ये रफ नहीं हो रहा। So talking about the glycolysis, वहाँ पे भी पायरुवेट फॉर्म होता है, बट वहाँ पे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एट द एंड फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बोला था ग्लाइकोलिसिस में जो सेकंड फेज है वहाँ पे 3 कार्बन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए वो 2-2 फॉर्म होते हैं, मतलब 2-2 बार एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, 2-2 बार रिएक्शन होती है। बट यहाँ पे एक ही बार रिएक्शन होगी, इसलिए एक ही बार पायरुवेट फॉर्म होगा, एक ही बार एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। और जो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे 2 एटीपीज आपको दिखाती हूँ मैं। स्टार्टिंग में देयर विल बी द utilization of the 2 ATP molecules like here at the first stage as well। तो यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ, एक ATP जो है वो यूटिलाइज हो गया, इसकी वजह से बस एक ही ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है इन द ED पाथवे, नॉट 2 मॉलिक्यूल्स अनलाइक द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP फॉर्म होते हैं, ED में बस एक ही ATP फॉर्म होता है, एक NADPH फॉर्म होता है, एक NADH फॉर्म होता है एंड एक H2O मॉलिक्यूल भी यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो ये बेसिक जो है हम कह सकते हैं इट इज़ अ बेसिक स्टेज ऑफ द ED पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस के जैसे ही है, बट थोड़ा सा वैरी करता है, स्टार्टिंग में थोड़ा वैरी करता है, बाकी आधा तो पूरा ग्लाइकोलिसिस जैसे ही है। पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, बट 2 मॉलिक्यूल्स सेपरेटली फॉर्म होंगे, नॉट अनलाइक पायरुवेट जिसमें सॉरी अनलाइक द ग्लाइकोलिसिस जिसमें एंड में ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने देखा KDPH जब ब्रेक डाउन होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
और पायरुवेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाके फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, मतलब 2 बार पायरुवेट फॉर्मेशन होता है. सो हियर यू कैन सी, नॉट हियर, हियर इज द पायरुवेट फॉर्मेशन, एंड अगेन यहाँ पे भी पायरुवेट फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द KDPH. सो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एनर्जी यील्ड, तो ये स्टार्टिंग में ही दिया गया था. एक ATP फॉर्म होगा, एक NADPH फॉर्म होगा और एक NADH फॉर्म होगा इन द होल प्रोसेस ऑफ ED पाथवे. सो हियर 1 ATP विल बी फॉर्म्ड, बहुत ऐसे लग रहा. सो 1 ATP विल बी फॉर्म एट द लास्ट स्टेज, सॉरी, इन द पायरुवेट फॉर्मेशन. जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो भी फॉर्मेशन होता है, जो भी कन्वर्जन होता है इनटू पायरुवेट, जो लास्ट स्टेज में हुआ था, सो ये जो होता है, हियर ओनली द ATP मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, नॉट बिफोर दिस थिंग. लाइक KDPH के पहले ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे बस एक NADPH का फॉर्मेशन होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आपको मिलता है पायरुवेट, एंड यहाँ पे जब ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म होता है KDPH से, वो भी आगे जाके फिर ग्लाइकोलिसिस करेगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. सो ऐसे होती है ED पाथवे की प्रोसेस. आपको जब मैं आपको नोट्स दूंगी तब आपको ये पाथवे की ओवरऑल साइकिल दे दूंगी, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ जाके ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है, कहाँ ED पाथवे में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो ओवरऑल आपको बस अभी समराइज हम करेंगे. तो ED पाथवे का पहला प्रोडक्ट हुआ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग द एंजाइम विच इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. Then second stage में glucose 6 phosphate will be converted into 6 phosphogluconate using the enzyme which is 6 phosphogluconate dehydratase. Then 6 phosphogluconate जो है वो break होगा into the 2 keto 3 deoxy 6 phosphogluconate by using the enzyme which is the 2 keto phosphogluconate aldolase will be breaking down the KDPH into the 2 products which is pyruvate and the glyceraldehyde 3 phosphate. थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, एंड ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आगे जाके फिर से ग्लाइकोलिसिस करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड ये जाके फिर से पायरुवेट बनेगा. सो ये होता है इन द ED पाथवे. पहले वो अपना नॉर्मल पाथवे करेगा थोड़ा हटके फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस. जो हमने ग्लाइकोलिसिस की जो स्टार्टिंग की फेज़ देखी थी, प्रिपरेटरी फेज़, वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड फेज़ में थोड़ी सी ग्लाइकोलिसिस की झलक दिखती है, बट फर्स्ट फेज़ में वी कांट सी एनी ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. यू कैन से ग्लाइकोलिसिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं की जाती. बस सेकंड फेज़ में पायरुवेट दोनों में फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एंड ATP भी दोनों में जनरेट होता है. फ़र्क इतना है, वहाँ पे 2 ATP फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे बस एक ही ATP हमें मिलता है, एंड NADPH भी मिलता है, अलॉन्ग विद दैट NADH भी मिलता है. So this is how the ED pathway is going to work in the bacteria, not all the bacteria, only the gram negative bacteria, and only like 1 or 2, we can say very rarely in the gram positive bacteria. So this is not a main pathway. Glycolysis ही generally bacteria perform करते हैं, but कभी कभी कुछ bacteria ये pathway भी carry out करते हैं. So this is about the ED pathway. I will give you the notes of this pathway so that you can better understand this pathway. Thank you.